Hello students, welcome back to my channel Accounts Easy with Jashanjot. This is the third part of our chapter first Fundamentals of Partnership of class 12th। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ ਸੀ ਜਿਨੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਅਕਾਊਂਟਸ ਸਮਝੇ ਸੀ ਪੀਨ ਪ੍ਰੋਪਰੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਪਾਰਟਨਰ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰੀ ਆਈ ਬਟਨ ਲਿੰਕ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਟਰਮ ਦੇਖੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਡਰਾਇੰਗਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗ ਮਤਲਬ ਜੇ ਪੈਸਾ ਮਾਲਕ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿਆਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਆ ਥੋੜਾ ਲੈਂਥੀ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆ ਬਟ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟਸ ਸ਼ੁਰੂ। ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਵਿਆਜ ਡਰਾਇੰਗ ਜਿਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾਏ ਬਿਜ਼ਨਸ फ्रॉम बिगिनिंग समझाना मैं ठीक है। अज्यूम करो दो पार्टनर्स ने ए ते बी इन्होंने मिलकर की करा बिजनेस शुरू करा। ओके इन्हें शुरू करा हुण ए ने की करा दोनों ने की करा 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करा साल के शुरू दे विच मतलब 1 अप्रैल। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਈਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਖਾਤੇ ਬਣਦੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਖਾਤੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਈਅਰ ਹੁੰਦਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਲਾਈਕ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੇਮ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਈਅਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਖਾਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਤਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਕੈਲੰਡਰ ਈਅਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ फाइनैशियल ईयर ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕਦਾ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਓਕੇ ਕਲੀਅਰ। ਓਕੇ ਨਾਓ ਇਹ ਤੇ ਬੀ ਨੇ ਪਾਰਟ ਬੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਲ ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕੀ ਹੋਇਆ 1 ਤਰੀਕ ਹਜੇ 6ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਲਏ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਲਏ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾ ਲਿਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਿਆ ਫਿਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ 1 ਤਰੀਕ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਕਰੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਲਏ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੀ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਬਟ ਇਹਨੇ 2 ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਲਏ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਲਏ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਈ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਮਤਲਬ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮਾਲਕ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਡਰਾਇੰਗਸ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਈ ਪਾਰਟਨਰ ਫॉर ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ अपनी पर्सनल यूज के लिए जो बिजनेस पैसे कढ़वा के बरत रहे अपनी पर्सनल यूज में आप कहने ड्राइंग्स कहने हूँ की कहेगा जे तू पैसे कढ़वा रहे तो मैनू कोई मैनू फायदा की होगा जे ए पैसे कढ़वा रहा बी नू की फायदा। इसलिए की किया करिया इन्होंने ये कहते जे तू पैसे कढ़वाएगा जिन्ने पैसे तू कढ़वाएगा वो तो तेनू की करना पेगा 10% ब्याज देना पेगा 10% की देना पऊगा ब्याज। जेरे तू पैसे कढ़वाएगा तो ब्याज जब तू देगा तो ब्याज अल्टीमेटली मैनू होगा ना इनकम होगी बी ने तो मतलब जे बी मतलब बिजनेस नू ए मतलब बिजनेस नू ब्याज देगा बी दी इनकम अगर किनू मिलेगी प्रॉफिट होगा इनकम किन्हां कोल होगी ए ते बी दोनों कोल मतलब बी तो कोई फायदा होगा ना पैसे कढ़वाए पैसे उन्हें कढ़वाए ब्याज देगा बिजनेस चेगा बिजनेस उन्हें मिलेगा फायदा तो होगा ना। इसलिए जिमें जो मतलब दोनों पार्टनर फेयरनेस बनी रहे दोनों बराबर का बनने इसलिए की ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਰੇਟ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਸਟ ਜੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਚ ਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਆ ਤਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜੇ ਡੀਡ ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। मतलब ਸਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਰੇਟ ਤੇ ਕਰ ਲੈਗੀ 10% ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ ਵਿਆਜ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਵਿਆਜ 10% ਆ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਮਾਉਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅੱਛਾ 1000 ਲੱਗੂ 4000 ਰੁਪਏ ਲੱਗੂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। देखो जिन्होंने ने ड्राइंग्स करें 1 लाख करी थी 1 लाख दे कितना टाइम लगेगा पिछे मतलब जिन्ना टाइम बिजनेस पैसा निकले ना वो देखना ईयर ले लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर मैं भी कैलेंडर भुलेखे खा गया जी सॉरी जनवरी फरवरी मार्च 1 2 3 4 5 6 7 8
ओके क्लियर। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਇਹਨੇ 1 ਦਿਨ ਆਓ 1 ਜੂਨ 1 ਜੂਨ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਏ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਰਾ ਦੇ ਕਰਾਣੇ ਅਕਤੂਬਰ ਪੂਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ 10/12 कितने महीने रहेगी 1 2 3 4 5 6 कितने रहेगी 6/12 कितने परसेंट ब्याज आ 10% 10% इन्हें कैलकुलेट करके जो अपने को वैल्यू सिंपल ओके 12 से कटा के ये अप्रॉक्सी आ जाएगा 8000 समथिंग आएगा कैलकुलेट कर लेने आप 8333.33 ये उरे कट जाएगा ये ना कट जाएगी 2 2 घटा दो ये आ जाएगा 5000 ओके क्लियर ऐदा की निकलू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वैल्यू निकलेगी ब्याज मतलब किन्ने रुपए देगा वो बिजनेस ਨੂੰ 833 प्लस 5000 टोटल कितना देगा 8 से 5 13333.33 पैसे बिजनेस ਨੂੰ देने ਪੈਣਗੇ ਕਿਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਜ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਢਵਾਏ मतलब कि जो दी वैल्यू कैलकुलेट इन शॉर्ट फॉर्मूला किन पता लग गया इन शॉर्ट ये चीज समझ लग गई मतलब जो पैसे कढवा रहा है बिजनेस ਨੂੰ पैसे देने ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੰਟरेस्ट ऑन ड्राइंग ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਡਰਾਇੰਗਸ ਦੇਖੋ ਕਦੋਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਡਰਾਇੰਗਸ ਗੁਣਾ टाइम पीरियड जिन्ना रिमेनिंग आ डिवाइड बाय 12 मैं उरे लिखदा रिमेनिंग मतलब जो टाइम पीरियड रहंदा है जिन्ना ओके गुना रेट अपॉन 100 दैट इज द फॉर्मूला फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जिन्ना पैसा उन्हें कढ़वाया ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਗਾ ਵਿਆਜ ਸਿਰਫ ਉਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇਗਾ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਇਆ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ ਕਦੋਂ ਹੋਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਫਡੀ ਕਰਾਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਐਫਡੀ ਕਰਾਈ ਐਫਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿਆਜ ਦੇਗਾ ਨਾ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ ਥੋੜੀ ਦੇਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਰਵਾਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੇਗਾ ਜੇ ਸਾਲ ਕਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਇਆ ਸਿਰਫ ਉਨੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਗਾ ਸਾਰੇ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਰੇਟ ਲਾਓ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਟਾਈਮ ਕਢਵਾਇਆ ਉਹ ਟਾਈਮ पे ਲੈਣਾ ओके क्लियर होप तुम समझ आ गए होगे तो इतना अपन समझ लिया पैसे लगाए फायदा की ਹੁੰਦਾ क्योंकि दूजे बंदे ਨੂੰ लॉस हो रहा है ना अल्टीमेटली लॉस ਨੂੰ कवर करने तक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ਦੀ पैसे कटवा रहा था ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰੇਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਓਕੇ ਕਲੀਅਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਦ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ नाउ सम कितना देगा सम मैं दस सकता लाइक ए विड्रॉ मनी फ्रॉम बिजनेस on the following dates calculate interest on time I got it interest on drawing at the rate 10% per annum okay clear dates mention होंगी dates कितना mention assume 1 तरीक 6वें महीने उन्होंने 10,000 रुपया कटवाया ठीक है 1 तरीक 7वें महीने उन्होंने 20,000 रुपया कटवाया ते 31 दिसंबर उन्होंने 31 दिसंबर उन्होंने 50,000 रुपया कटवाया ओके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लगेगी रेट दिता है अपन ठीक है टाइम पता है टाइम कैलकुलेट कर लो रिमेनिंग कितना है ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਮੈਂ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 ओके। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्तूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। क्लियर। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਛੀਨ जनवरी शुरू हुआ है चिकन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 बाय 12 ओके रेट कितना 10/100 ओके यदि वैल्यूज निकल जाएंगे 10,000 से 12 कटाएंगे 833.33 आ जाएगा ओके 20,000 का दुकड़ा है एक साथ में जुलाई शुरू होया नहीं एक महीने बाद पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीने रहेगी 9/12 गुना 10/100 1500 ओके क्लियर। अगला क्या पिया है यार इतने किन्नी का दुकड़ा 31 दिसंबर नो 31 दिसंबर ने इतने किन्ने महीने के 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3/12 मल्टीप्लाई बाय 10/100 1 0 कट गई 1 0 आ कट गई 1 4 4 से आ जाएगा 1 10 2 20 5 12 50 ओके 12 आंसर आ जाएगा ओके हम ये तीनों जोड़ कर लो कितनी वैल्यू निकल जाएगी 1500 833 ते 12 3 8 8 10 10 से 5 15 2 3 35 83 3,583.33 पैसे ओके क्लियर किमें करे अपनी सिंपल ड्राइंग्स लिख लिया टाइम पीरियड और रेट लगाता पानी जिन्ना टाइम पीरियड पिछे रहता सी थले की लेना 12 था लेना फुल ईयर का लेना थले 12 ऊपर जिन्ना टाइम रहेगा वो लिख के कैलकुलेट कर देने वाली सोना जोड़ता ओके क्लियर तो एक गल होर नोट कर लो ਇਹਦਾ ਇਹ ਮੈਥਡ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਜਦ ਆਪਾਂ ਡਰਾਇੰਗਸ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਡੇਟ ਲੈਣੇ ਦਾ ਮੈਥਡ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪਾ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਡ ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇ ਟ੍ਰਿਕ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਆ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ प्रोडक्ट मेथड सिंपल मेथड की हो रहा है पहला कैलकुलेट कर रहे हैं बहुत लंबा प्रोसेस है नहीं इन्हें मैं शॉर्टकट कर देंगे इजी कर देंगे शॉर्टकट मेथड किया शॉर्टकट ड्राइंग्स आ ले रहे हैं आसे फारिश कर रहे हैं देखो ये समझ करके हमारा वैल्यू देख लो अन्य ना इन्नी वैल्यू होगी सेम हम शॉर्टकट प्रोडक्ट मेथड की होता है सिंपल इदा ही करना आईओडी के में निकलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरे आएगा टोटल प्रोडक्ट्स गुना टोटल प्रोडक्ट्स गुना रेट 100 मल्टीप्लाई 1/12 सर टोटल प्रोडक्ट्स किंदा दादा टोटल प्रोडक्ट्स निकलदा किदा है आंसर में नहीं रहा आंसर आ साइड ते पिया मैं सिर्फ आ वैल्यूज ले रहा ओके हुन पहली ड्राइंग कदों हुई है आ ड्राइंग से कर दी 20000 ते पिया यार है ना ओके 20000 ते 50000 पहली ड्राइंग कितनी है 1 तारीख नु पीछे कितने महीने रह गए पीछे रह गए जी 10 10 से ना 1 10 महीने 10 ना गुना कर और सर ड्राइंग एक इधर कितने में लगे 9 दिसंबर कितने में लगे पीछे 3 गुना कर दो इन आंसर में साइड पे लिख लेना जेरा पर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ क्रॉस चेक करा दूंगा 3583 3583.33 ओके 10 में 10 ना 2 1 2 3 4 5 3 4 5 1 लाख बन गया 9 नु भी ना 1 लाख 80,000 50 नु 3 लाख 1.5 लाख इट टोटल करूँ ना मतलब ए हो गया एक ही काजी वैल्यू निकल गई वैल्यू
टोटल प्रोडक्ट्स आ प्रोडक्ट है हूँ सारे ने जोड़ के टोटल प्रोडक्ट वैल्यू कढ़ लो इसकी कितनी आएगी 1 2 3 ना 4,30,000 4,30,000 आई हूँ 4,30,000 की करना अपने फॉर्मूले पुट कर दो इंटरेस्ट इंडेक्स निकल जाएगा 4,30,000 गुना 10/100 गुना 1/12 ये कैलकुलेट कर लो वैल्यू पहली गया 4,30,000 गुना 10 गुना 10 डिवाइडेड बाय 100 देखो 583.33 सॉरी 35 सेम वैल्यू सेम 3583.33 बेशक आप तुसी वैल्यू कैलकुलेट कर दो आ वैल्यू ते आ वैल्यू सेम 3583 तो आप तो सही लिख करके लिख दो 353.33 दोनों वैल्यू सेम नहीं भावें पर हम की शॉर्टकट सिंपल किंदा पहले कल्ली कल्ली वैल्यू करदा कल्ला कल्ला कैलकुलेशन करदा और कल्ले कल्ला कैलकुलेशन करने की लोड नहीं सीधी वैल्यू कड्डो और जिन्ने टाइम रहता मल्टीप्लाई प्रोडक्ट निकलेगा प्रोडक्ट में जोड़ो बस ते उरे 1/12 क्यों लगाया 1/12 अपन न्यूट्रलाइज वैल्यू करने लाया क्योंकि ईयर ना कोई ड्राइंग्स हो रहे हैं हम न्यूट्रलाइज करने लिए 1/12 लग रहा है देखो वैल्यू सेम आ रही है आंसर सेम है हमें सिंपल मेथड लगा लो जिसमें वही ज्यादा जो जी प्रोडक्ट मेथड लाना प्रोडक्ट मेथड ला लो तो उन्हें बहुत एप्लीकेबल नहीं सेम आंसर आएगा मतलब जब पैसे कढ़वाਉਂਦਾ है ਉਹਦੀ ड्राइंग पैसे कैलकुलेट ਕਰਨ ਦੀ ਰੇਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ड्राइंग ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਏ सेम चीज़ है बस उदों 10/12 ला देना नाल रेट लग जाता वो रेट बाद इकट्ठा लग जाता है 12 थल्ले इकट्ठा लग जाता कला देखो देखो 12 थल्ले लाते फिर कदे आ 12 नहीं होंदा और ये लाया रेट लाउंदे रेट नहीं लाया रेट बाद लाता सेम कंसेप्ट ही हुई है घुमा के गल उत्थे आ जाती है इसलिए सिंपल इंटरेस्ट रैंक थानू पता लग गया दो मैथड से नहीं सिंपल मैथड प्रोडक्ट मैथड सिंपल कैलकुलेट करना प्रोडक्ट्स कट लेना इकट्ठे दे फिर ड्राइंग करना ओके होप तो तुहानू समझ लगेगा ये तो आप नैक्सट वीडियो एक यूनीफॉर्म ड्राइंग होंगे ने मतलब सीधे दसांगा ट्रिक्का सीधे फॉर्मूले रट याद कर लेने सीधे फॉर्मूले लगाओ वैल्यू सा निकलनी है वो भी दसांगा कदों यूनीफॉर्म ड्राइंग विच आउंदा केस मिड मंथली हो गया क्वार्टरली हो गया ईयरली हो गया सो वो सारा आप समझेंगे नैक्सट वीडियो और जे तुसीं चैनल नूं सबसक्राइब नहीं करिया दैन सबसक्राइब कर लो ताकि तुसीं अपडेटेड हो वीडियो ਲਈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾचिंग